Dear students, this is me, Dr. Shikha Sharma, lecturer in English at Government Girls College, Bara. Students, in this video, I'm going to talk about William Shakespeare's poem To Be or Not to Be. I'll continue the poem To Be or Not to Be. What is the poem about? Okay, this poem is A Soliloquy uttered by Hamlet, Prince Hamlet, in the play Hamlet. In his speech, Hamlet talks about life and death. When he finds himself in a moral dilemma and suffers from the pain and difficulties of life, he seeks a solution to escape from the world in order to get rid of the obstacles and miseries of human life. He thinks to accept death by committing suicide and thus wants to be free from the disappointment and the pain of the world. But when he considers about the life after death or the worst condition of life after death, he gives up the idea of committing suicide. He says that these suffering and hardships of life are the part and parcel of human life. Nobody can escape from this. Life on this earth has nothing pleasant to offer. Man has to tolerate the blows of fortune or destiny. The tyranny, insult, failure in love, despondency, delay in verdict, these man has to face these problems in his life. Further, he says that men can end all these by the mere stroke of a dagger or a bodkin. Means by men can, if a man can kill himself, if a man kills himself, he can kill himself by a dagger, and thus he by committing suicide he can escape from all these difficulties of life. But the fear of the life after death does stop him to do so, and thus he sustains the idea of living his life, or he gives up the idea of suicide or death. The uncertainty whether that life is free from evils or not make men desist from suicide. Okay, when Hamlet feels, जब उसे ऐसा लगता है कि सुसाइड करने के बाद भी इन लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे नहीं बचा सकता, तो देन ही गिव्स अप द आइडिया, तो वो उस आइडिया को छोड़ देता है. सुसाइड करने का जो उसका थॉट होता है उसे वो वहीं छोड़ देता है. एंड ही सेज फर्दर ही सेज दैट, और वो कहता है कि यदि इस तरह से कोई व्यक्ति अपने आप को यदि मार सकता है, सुसाइड कर सकता है, तो ये जो लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसे कौन सहन करेगा. ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, फेल्योर इन लव, डिले इन लॉ और वर्डिक्ट, और इंसर्ट बाय अपर क्लास पर्सन, तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो इन्हें कौन सहन करेगा. ये जो है प्रॉब्लम्स, ये मैन को सफ़र, जो मैन हैज़ टू सफ़र टॉलरेट दिस प्रॉब्लम्स एंड ही कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस प्रॉब्लम्स. वो इन समस्याओं से बचकर जा नहीं सकता, उसे ये समस्याएं स्वीकार करनी होंगी और सहन भी करनी होंगी. इफ़ ही लीव्स इज़ लाइफ, यदि उसको अपना जीवन जीना है, यदि अपने जीवन को जीता है, तो उसे ये प्रॉब्लम्स भी फेस करनी है. और यदि वो मर भी जाता है तो उसके बाद भी लाइफ की कोई श्योरिटी नहीं है कि उसके बाद उसका जीवन कैसा होगा. सो आफ्टर थिंकिंग ऑल दीज, ये सब कुछ समझने के बाद हैमलेट, प्रिंस हैमलेट गिव्स अप द आइडिया ऑफ कमिटिंग सुसाइड. वो इस कंक्लूजन पे आता है दैट ही शुड नॉट डाई, कि उसे नहीं मरना चाहिए. ओके, वो उस आइडिया को छोड़ देता है. एंड देन ही फर्दर सेज दैट but that the dread of something after death, the undiscovered country from whose bourne no traveler returns, puzzles the will. Okay, but that the dread of something after death, dread means fear, समथिंग आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद का जो भय है. ओके, मृत्यु के बाद के जीवन का जो भय है, या मृत्यु के बाद का जो भय है, किस चीज़ का भय? द अनडिस्कवर्ड कंट्री, एक ऐसे अननोन देश में जाने का, क्योंकि आफ्टर डेथ नोबडी नोज, कोई नहीं जानता है कि उसके बाद कौन कहाँ जाएगा. ओके, आफ्टर डेथ
सो द अनडिस्कवर्ड कंट्री, ऐसा अननोन देश जहाँ से फ्रॉम हुज बाउंड मीन्स बाउंड्री, जिसकी सीमा से नो ट्रेवलर रिटर्न्स, कोई भी ट्रेवलर यात्री वापस नहीं आ सकता है, क्योंकि मरने के बाद उसे पता नहीं वो कहाँ जाएगा, और ऐसी जगह जाएगा जहाँ से शायद लौट कर आना भी मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। पजल्स द विल, एंड यही रीज़न है दैट वीकन्स हिज विल पावर, जो कि इस विल पावर को वीक कर देता है। ठीक है, उसकी जो विल पावर है, उसका जो डिटर्मिनेशन है, उसको वीक कर देता है, कमज़ोर कर देता है। एंड मेक्स अस रादर बेयर दोज ills we have, and that makes, and he compels this idea compels a man to live his life or to give up the idea of committing suicide। और इस तरह का जो वो विचार है सुसाइड करने का या मरने का विचार उसके दिल और दिमाग से, ये थॉट जो ये जो एक फियर है, जो भय है मृत्यु के बाद का भय, कि ऐसे अननोन अनजाने देश में या ऐसी जगह चले जाना जहाँ से शायद कोई दोबारा लौट कर नहीं आता है, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो थॉट है, उसकी जो विल है, उसकी जो डिटर्मिनेशन या उसकी जो विल पावर है, उसे बहुत वीक कर देता है। एंड ही कंपेल्स हिम, एंड उसको कंपेल करता है, विवश कर देता है टू रादर बेयर, वो सहन करने के लिए सारी परेशानियाँ, दोज इल्स वी हैव, ये सारी जो परेशानियाँ हैं, जो सारी प्रॉब्लम्स है, डिफ़िकल्टीज़ है, ऑब्स्टकल्स है लाइफ की, वो उसे सहन करने को विवश कर देता है या मजबूर कर देता है। ये एक थॉट, व्हाट इज थॉट? द थॉट ऑफ द फियर आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद का जो भय का जो विचार है, उसके वो जो कंडीशन है, उसके बारे में सोच कर ही वो उस विचार मतलब अपना जो आइडिया है उसे छोड़ देता है और वापस पुनः अपने जीवन की जो ऑप्शन उसने लिया हुआ है लाइफ का, जीवन का, वो उस ऑप्शन की ओर वो मुड़ जाता है, वो अपना, ठीक है, ही टर्न्स अवे टुवर्ड्स द ऑप्शन ऑफ लाइफ, वो मृत्यु की नहीं बल्कि जीवन की ओर वापस चल देता है, क्योंकि उसे फील हो जाता है कि शायद मृत्यु के बाद भी इस जीवन में कोई सुख नहीं होगा या इन परेशानियों से फिर भी छुटकारा नहीं मिलेगा। Then fly to theirs that we know not of, and nobody knows, कोई नहीं जानता है कि कहाँ पर मृत्यु के बाद वो व्यक्ति कहाँ जाएगा और उसका क्या होगा। कि दस, और इस प्रकार से conscience does make coward of us all, and thus the native hue of resolution is sickled over with the pale cast of thought. Okay, so he says that further, he says that thus conscience does make a coward of us all, और यही जो बात है, यही जो विचार है मृत्यु के बाद के जो भय का जो विचार है, ये कॉन्शियस हमारे मन को डज मेक कॉवर्ड ऑफ अस ऑल, हमारे मन को भयभीत कर देता है। कॉवर्ड मीन्स भयभीत कर देना, डरा देता है, डरपोक बना देता है हमारे इस मन को, हमारे दिल और दिमाग को बिल्कुल डरपोक बना देता है, या एक विचार ऐसा आता है कि हम डर जाते हैं। एंड दस, और इस प्रकार से द नेटिव यू ऑफ रेजोल्यूशन, नेटिव यू मीन्स कलर ऑफ रेजोल्यूशन, हमारा जो डिटर्मिनेशन, जो संकल्प होता है, मृत्यु का जो संकल्प होता है या सुसाइड करने का जो थॉट होता है, उसका जो हैमलेट का जो सुसाइड करने का थॉट है, वो उसको बहुत वीक कर देता है, उसको कमज़ोर बना देता है। मृत्यु के बाद के भय का जो विचार है, वो उसके विचारों को, जो उसका जो थॉट है या जो उसका जो डिटर्मिनेशन, जो संकल्प, रेजोल्यूशन उसने लिया हुआ है कि नहीं वो अपने जीवन को समाप्त कर देगा इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए, वो उसका वहीं पर वीक हो जाता है। ठीक है, इस द यू ऑफ रेजोल्यूशन इज सिकल्ड, वो कमज़ोर बना दिया जाता है, जो डिटर्मिनेशन है उसे बिल्कुल बीमार, मतलब वो उसे बहुत ज़्यादा वीक कर दिया जाता है, उसकी विल पावर को वीक किया जाता है विद द पेल कास्ट ऑफ थॉट। इस तरह का जो विचार है, ठीक है, मृत्यु के बाद के जो भय का जो विचार है, वो वहीं पर उसके जो डिटर्मिनेशन है, जो उसका रेजोल्यूशन है, उसको बहुत ज़्यादा वीक कर देता है और वो उस आइडियाज़ को अपने दिल और दिमाग से निकाल देता है। एंड एंटरप्राइजेज ऑफ ग्रेट पिच एंड मोमेंट विद दिस रिगार्ड देयर करंट्स टर्न अवे एंड लूज द नेम ऑफ एक्शन। और इस तरह से एंड एंटरप्राइजेस ऑफ ग्रेट पिच एंड मोमेंट, और जो उसका एंटरप्राइज, जो हार्ड वर्क है, किसी भी पर्सन का जो उसका जो हार्ड वर्क है और जो इम्पोर्टेंस है विद दिस रिगार्ड, इस तरीके से, इन दिस वे दियर करंट्स टर्न अवे, जो उसका जो करंट्स टर्न अवे मीन्स वो ही टर्न्स अवे, वो जो पर्सन है अपने जो अपने जो पाथ है उससे डाइवर्ट्स हो जाता है। एंड लूज द नेम ऑफ एक्शन, और जो अपना जो काम है वो छोड़ देता है, वो उसका वहीं पर अधूरा
रह जाता है। मीन्स इफ़ अ पर्सन वॉन्ट्स टू डू समथिंग, यदि एक व्यक्ति कुछ करना चाहता है एंड ही इज़ वीकन्ड बाय द थॉट ऑफ फियर, यदि वो किसी भी भय के विचार से, ओके, वो कुछ करना चाहता है लेकिन यदि उसके मन में उस कार्य को करने के लिए जो भय है यदि वो उत्पन्न हो जाता है, वो भय उसके अंदर यदि आ जाता है तो वो उस काम को नहीं कर पाता है, उसका वो अपने माइंड, अपना जो पाथ है उसको डाइवर्ट कर देता है, अपना रास्ता बदल देता है, और जो उसका जो एक्शन है, जो काम है, और जो उसका डिटर्मिनेशन है, उसका जो रेजोल्यूशन है, संकल्प है, उसकी दृढ़ता, वो दृढ़ संकल्प वहीं रह जाता है और वो अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पाता है। ये जो डर है, जो फियर है, उसका जो थॉट है, डर का जो विचार है, उसके दिल और दिमाग को इतना कमज़ोर बना देता है कि वो चाहकर भी अपना काम नहीं कर पाता है और वो अपने जो रास्ता है उस रास्ते से, वो अपने वे से भटक जाता है, डाइवर्ट हो जाता है और उसका वहाँ काम वहीं पर अधूरा रह जाता है। So if a person has thought about if a person thinks about to do something, यदि वो कुछ करने की भी सोचता है, and if the fear weakens his will power, उसकी विल पावर को यदि कोई भय वीक कर देता है, that he does not do his that he cannot do his work, तो वो अपना काम नहीं कर पाता है, and he feels that ही लूजेस, वो खो देता है हिज एक्शन, ही डाइवर्ट्स, दिस फियर डाइवर्ट्स हिम फ्रॉम हिज एक्शन एंड ही कैन नॉट डू हिज वर्क।